So welcome to dear students. Today the lecture is very important one, and this lecture that is pertain to the complex stress topic. But here I am discussing about the Mohr circle, that how we will draw Mohr circle, what is the significance of the Mohr circle. So this topic, you can say that you will get lot of questions, conceptual type of questions in the examinations. तो ये जो Mohr circle जो आपका टॉपिक है, ये बहुत ही important है, and I will advise to all the students or the people who are watching my lecture or video, they can watch it right from the beginning to the end. And in this lecture, you will get the very good concept regarding to the Mohr circle. And moreover, you are having any doubt about this topic, today I will try to clear all your doubts, right? तो मेरा जो आपको सजेशन है वो ये है कि इस टॉपिक को आप बड़ा इंटरेस्ट से राइट से लेके बिगिनिंग तक देखिए, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट आएंगे. बिकॉज माय लेक्चर, ये जो आपका लेक्चर होगा दैट इज मोर देन 1 आवर और 1.5 आवर लाइक दिस. तो इसमें आपको जितने भी कंसेप्ट आपके मोर सर्कल्स के हैं जो हमारे प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में, गेट में और भी अदर एग्जाम कहीं भी आ सकते हैं, तो ये आपके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे. सो द फर्स्ट थिंग आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज माय लेक्चर. द पीपल हु आर जस्ट विद मी, दे आर वाचिंग माय लेक्चर्स, दैट इज ऑलराइट फॉर देम. बट द पीपल हु आर जस्ट वाचिंग माय recorded video or the lectures, I will suggest them that start the lecture from the beginning and complete this lecture, so that the concept which is given here, that is very much clear to you. So let us start the topic Mohr circle. आज जो हमारा lecture number 4 है, lecture number 4, right? तो कम्प्लेक्स टेक्स्ट के 3 लेक्चर्स मैंने आपको दे दिए थे. इन दैट लेक्चर्स वी नो दैट हाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड द shear stress on the inclined plane when we are having the state of stress, that is sigma x, sigma y and tau xy is acting on the vertical and horizontal plane, and we have to find the stresses on the inclined plane. तो वो जो हमारी जनरल इक्वेशन थी स्ट्रेसेस की, वो हमने आपके जो प्रीवियस 3 लेक्चर्स थे उसमें कम्प्लेक्स स्ट्रेस के, तो उसमें ये आपका कंप्लीट हुआ था. आई हैव टू गो फॉर द न्यूमेरिकल्स, बट ये न्यूमेरिकल्स जो आपके कन्वेंशनल न्यूमेरिकल्स होंगे रिगार्डिंग टू मोर सर्कल, हाउ वी ड्रा द मोर सर्कल, उसके न्यूमेरिकल्स होंगे. तो इनका सेपरेट लेक्चर्स जो है देंगे. अभी जो मेरे मन में था कि आई विल जस्ट टेक दिस लेक्चर दैट इज द मोर सर्कल, और जो इसका डिमांड भी था, मोस्टली द स्टूडेंट्स आर प्रेसिंग मी दैट सर यू गिव द लेक्चर ऑन द मोर सर्कल. तो मोर सर्कल हम स्टार्ट करेंगे, राइट? So first we will understand that what is Mohr circle, right? So in this lecture that we will understand the basic of the Mohr circle. You understand that? And with the Mohr circle we can understand lot of things about the complex stresses. जहां से हमें complex stresses के बारे में सारी चीजें क्लियर होंगी in one circle, you can say, because जो हमारा फिगर था जिसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, तो वहां पे सिर्फ 2 प्लेन है, तो वहां पे हम सिर्फ 2 प्लेन्स के ऊपर लेते थे.
we can calculate the state of stress on the two planes in the y-axial stress condition की बात कर रहा हूं मैं, right? But in case of this Mohr circle, you will get the state of stress on the different plane, and where the stress is maximum, where the stress is minimum, where the shear stress is maximum, where the shear stress is minimum. So like this, all these things will be get on one diagram which is called the Mohr circle. You understand? तो ये जो Mohr circle का आपका टॉपिक है, ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज, एंड आई विल इसमें हम बेसिक ऑफ द Mohr सर्कल्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिक क्या है, and that will give a lot of things about the complex stresses and how to draw the Mohr circle, कि Mohr circle को हमें कैसे ड्रा करना है. You understand? तो first of all, as we have derived the equation of the sigma theta and shear tau theta, right? तो जनरल इक्वेशन क्या थी? सिग्मा थीटा की we know that, so we know these equation जो अभी पीछे मैंने ड्राइव किया क्या थी? That is sigma theta. What is the sigma theta? When the three stresses are acting on the plane, horizontal plane and vertical plane, and we have to find the stresses on the inclined plane. तो उसमें sigma theta क्या था? That is sigma x plus sigma y by 2 plus sigma x minus sigma y cos 2 theta plus sigma x minus sigma y cos 2 theta plus tau xy sin 2 theta plus tau xy sin 2 theta, right? Plus, sorry, cos 2 theta plus tau xy sin 2 theta. ये एक इक्वेशन थी आपकी, राइट? अब tau theta की क्या इक्वेशन थी? Tau theta, this is equal to minus sigma x minus sigma y by 2 sigma x minus sigma y by 2 जहां पर भी लिखो sigma x minus sigma y 2 sin 2 theta plus tau x by cos 2 theta, right? So these are the general equations जो इससे पहले वाला टॉपिक था जो हमने ड्राइव किया था. Say this equation number first and this equation number second, right? अब क्या कीजिए? From this equation, from the equation first, आप लिख लें from इक्वेशन फर्स्ट. आप इसको इधर ले जाइए. अब सिग्मा थीटा माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2. दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई by 2 cos 2 theta plus tau xy sin 2 theta, right? So you can say this is your equation number 3rd, right? जी आपकी इक्वेशन क्या आई? This is your equation number 3rd. Now squaring and adding
स्क्वायर करो और ऐड करो आप। यू अंडरस्टैंड दैट? स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड। स्क्वायरिंग and adding equation second, this one ये वाली इक्वेशन, और ये जो थर्ड इक्वेशन हमने इसको चेंज करके बनाया था, इक्वेशन एंड थर्ड, राइट? इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इनको स्क्वायर करो और आप इसको ऐड कर लो। यू अंडरस्टैंड? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा। सो दिस इज योर इक्वेशन थर्ड। इसे हम ऐसे लिखें, अगर सिग्मा थीटा माइनस सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2, दैट इज होल स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड में इसमें देखिए, लेफ्ट साइड में सेकंड में क्या था? टाउ थीटा स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे आपको, टाउ थीटा स्क्वायर, राइट? लेफ्ट साइड इनकी हमने स्क्वायर और ऐड कर ली। दिस इज इक्वल टू, ये जहां पे इक्वल टू को साइन डालो, दिस इज इक्वल टू, नाउ कम टू दिस राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आप यही, अब तो ये क्या होगा? स्क्वायरिंग एंड एडिंग है ना, ये भी प्लस साइन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 होल स्क्वायर, सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई होल स्क्वायर का स्क्वायर 2 थीटा, राइट? का स्क्वायर 2 थीटा प्लस टाउ x बाई स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा ये आ गया इसका, यस। इसको कर लो, एक्स बाई स्क्वायर कर लो, ऐसे कर लो, साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब इसमें आ जाइए, इसको ले लिया आपने। नो कम टू दिस राइट हैंड साइड ऑफ दिस, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर, व्हाट इज देयर? साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 2 थीटा, राइट? तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब देखिए यहां से, दिस इज द मैथमेटिक्स, नॉट एनीथिंग एल्स। जे वाला सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 2 होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस जे वाला ले ले, दिस वन एंड दिस वन, यू टेक दिस वन, पहले मैं ये ले लेता हूं, दिस वन एंड दिस वन, व्हाट इज दैट? मीन्स जे वाला और जे वाला, ये साइन स्क्वायर सिग्मा एक्स माइनस बाई बाई 2 होल स्क्वायर, तो इसको हम अगर ऐसे लिखें, देखिए कैसे आएगा ये तो ये रहेगा जहां पे मैं, आई एम जस्ट टेकिंग द राइट हैंड साइड, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो आपका आ गया, देखिए सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाई 2 होल स्क्वायर, ये तो ऐसे रहेगा,
साइन स्क्वायर थीटा, ये अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आया, ये साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अंडरस्टैंड। अब इसको ले लें आप, जे वाला और जे वाला, तो इसमें क्या आएगा, इसमें भी देखिए प्लस टाउ एक्स वाई होल स्क्वायर, जे कॉमन आ जाएगा दोनों में, और बीच में क्या बचा, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। यू अंडरस्टैंड। साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और ये आपको पता है ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, 1 के बराबर होता है 1, और ये भी आपका हो गया 1। यू अंडरस्टैंड। तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन बचेगी, इसको हम मिटा लेंगे यहां से। Now the equation is sigma theta minus sigma x plus sigma y by 2, and this is whole square plus tau theta whole square, right? This is equal to, now come to the right hand side, जहां से देख लीजिए ये क्या आएगा, सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 होल स्क्वायर, ये तो आपका 1 हो गया, प्लस टू एक्स वाई होल स्क्वायर, या टू एक्स वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन आ गया। और दिस इज द इक्वेशन ऑफ द मोर सर्कल। ये आपकी जो इक्वेशन मैंने ड्राइव किया है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द मोर सर्कल। सो एज यू नो, देखिए एज वी नो, मुझे बताइए इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है। एज वी नो द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की क्या इक्वेशन है। सपोज इफ ए एंड बी आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कल एंड द सर्कल विच इज ड्रॉन ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपको पता है, this is equal to x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to r square, is equal to r square. So this is the equation of the circle. Now let us understand. Let us compare this equation which we have got with the equation of the circle, right? As I'm telling you that the Mohr circle is drawn on the sigma and the tau coordinates, sigma and the tau axis you can say, ठीक है ना। सिग्मा और टाउ एक्सिस के ऊपर हम इसको ड्रा करते हैं, वेयर एज द सर्कल इज ड्रॉन ऑन द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, एक्स एंड वाई एक्सिस, राइट। यू अंडरस्टैंड दैट। तो सर्कल को हम, तो अगर हम इससे कंपेयर करें तो मुझे बताइए यहां पे, जहां से हमें, तो इसमें ये जो इक्वेशन ऑफ द सर्कल था, इसमें आपका कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर क्या थे, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल, ये जो इक्वेशन ड्राइव की थी, इसमें जो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल होंगे वो क्या होंगे, दिस इज इक्वल टू ए एंड बी, एंड ये जो राइट हैंड साइड है, दिस इज द रेडियस आर स्क्वायर, राइट। तो अगर इसी इक्वेशन को, इफ आई विल कंपेयर दिस इक्वेशन विच वी हैव कैलकुलेटेड
with the equation of the circle, J circle we are drawing on the x and y axis, and I am saying that this is the equation of the Mohr circle which we will draw on the sigma and tau axis. तो इसको अगर इस इक्वेशन को देखें तो मैं कहता हूं पहले दिस इज द इक्वेशन ऑफ द मोर सर्कल। ये जो आपकी इक्वेशन है, दस इक्वेशन ऑफ मोर सर्कल, यू अंडरस्टैंड। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इसमें क्या होंगे, यहां पे लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट of center of Mohr circle, coordinates of the center of the Mohr circle। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, मैं कहता हूं कि सर्कल के कोऑर्डिनेट थे ये ए यहां पे और बी यहां पे, और एक्स और वाई क्या थे, एक्सिस थे जिनके ऊपर हमने सर्कल को ड्रा किया था। सिग्मा एंड टाउ दीज आर द एक्सिस जिनके ऊपर हम मोर सर्कल को ड्रा करेंगे एज वी आर कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशंस। तो ये वाली चीज जो है ये क्या होगी, ये आपको समझो आपका ए कोऑर्डिनेट हो गया। अगर इसको हम देखें एक्स माइनस ए, तो ये सिग्मा माइनस, ये मोर सर्कल का एक कोऑर्डिनेट ये हो गया। और दूसरा कोऑर्डिनेट इसमें देखिए क्या होगा, टाउ थीटा जो है दिस इज द एक्सिस ऑन विच द मोर सर्कल इज ड्रॉन, मींस बाई, टाउ थीटा क्या है, बाई है, यू अंडरस्टैंड। तो b की जो वैल्यू है इसमें कोऑर्डिनेट में वो क्या है, 0 है, जहां पे सिर्फ टाउ थीटा स्क्वायर लिखा है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब टाउ थीटा क्या है, 0 है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर वो क्या आ गया आपके, सेंटर ऑफ द मोर सर्कल दैट इज सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 इंटू 0। ये हमें कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द मोर सर्कल वी गॉट। ये जो इक्वेशंस थी इसमें हमें ये मिल गया। और रेडियस ऑफ मोर सर्कल, अब देखिए ये क्या था इस साइड, इफ आई विल कंपेयर दिस, ये आपका आर स्क्वायर है, मींस जो राइट हैंड साइड था इसका वो क्या है, रेडियस का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो राइट हैंड साइड है, इफ वी विल कंपेयर दिस विद दिस इक्वेशन, तो ये आपका होगा रेडियस स्क्वायर। तो रेडियस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ दिस। तो रेडियस ऑफ द मोर सर्कल दिस इज इक्वल टू under root radius of the Mohr circle, this is equal to under root sigma x minus sigma y by 2 whole square So radius of Mohr circle, what is the radius of Mohr circle, plus 2x y square, you understand। तो ये सेंटर ऑफ द मोर सर्कल, ये फार्मूला दोनों याद रखना है, सेंटर ऑफ द मोर सर्कल एंड रेडियस ऑफ द मोर सर्कल, you understand। This is the center of the Mohr circle, that is sigma x plus sigma y by 2 dash 0. This is the center and this is the radius of Mohr circle, you understand this। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नाउ जस्ट अंडरस्टैंड हियर दैट, इसको मिटा देंगे, so as you know that
this is the horizontal and right, vertical plane, tau by x. Right. So this is your, you can say this is your vertical plane, जहां पे अगर हम ऐसे फिगर ड्रा करते हैं, and this is your horizontal plane. You understand? The angle between these two planes, that is 90 degree. You understand this? अब if we have to plot the state of stress on the Mohr circle, right? तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो मोर सर्कल के ऊपर होगा, दैट इज ऑन द सिग्मा एंड टाउ एक्सिस, राइट? एज अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन, द मोर सर्कल जो है, अगर हमने मोर सर्कल को प्लॉट करना है, दैट वी विल प्लॉट ऑन द सिग्मा एंड टाउ एक्सिस. ये आपका क्या है, सिग्मा एक्सिस हो गया, प्लस सिग्मा, दिस इज योर minus sigma, this is minus tau. This, I will tell you that why I have taken this minus tau on the top, that we will later discuss. And this is your plus tau, right? So we have to plot the Mohr circle on the sigma and tau axis in order to find the state of stress. हमें मोर सर्कल कहां पे प्लॉट करेंगे, सिग्मा एंड टाउ एक्सिस के ऊपर. जस्ट लाइक दिस वी कैन ड्रॉ. और अगर हम मोर सर्कल का कोई आप सेंटर ले लें, किसी भी पॉइंट के ऊपर सेंटर ले लें, एंड we will draw the Mohr circle like this. Suppose this is your center and this is your Mohr circle, right? ये center के point क्या है? What is your center? That is sigma x plus sigma y by 2 dash 0. तो center निकाल लेंगे. If we have to use the analytical method to find the problem, mostly we calculate the problem by using the analytical method. तो analytical method यूज करके आप सेंटर ऑफ द मोर सर्कल निकाल सकते हैं. सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू जहाँ तो आपको न्यूमेरिकल्स में दी होगी, आइदर यू हैव टू कैलकुलेट, आपको डिफरेंट कंडीशंस पैरामीटर्स दिए होंगे. तो सेंटर आपका होगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 0, और जे आपका रेडियस है. दिस इज योर रेडियस, दिस इज योर रेडियस. और रेडियस आपका क्या है, रेडियस दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स बाई होल स्क्वायर, राइट? तो जहां पे आपने देखा, यू हैव सीन हियर दैट वी हैव प्लॉटेड दिस मोर सर्कल on the sigma and tau axis in order to find the state of stress, right? तो state of stress find out करने के लिए हमने मोर सर्कल को इस तरीके से ड्रा किया. अभी ये आपको बताएंगे कि हाउ वी विल ड्रा द मोर सर्कल. ये आपको जस्ट आई हैव शोन हियर. तो जहां तक चीजें आपको क्लियर है, जहां तक चीजें क्लियर हैं कि मोर सर्कल, अब देखिए इसके सिग्निफिकेंस देख लेते हैं हम. व्हाट आर द significance of the Mohr circle.
So for that significance of the Mohr circle, suppose ये आपका right horizontal and vertical axis biaxial conditions, स्ट्रेस कीजिए आपका सिग्मा x टाउ एक्स वाई, अब ये आपका सिग्मा बाई टाउ वाई एक्स, right? And suppose this we have drawn the Mohr circle. जे जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज सिग्मा माइनस टाउ प्लस टाउ, right? Some people are taking the tau positive here and minus tau is here. So there is no problem because the sign doesn't matter here. जो साइन जो भी मैग्नीट्यूड में आएगा वो आपका जो शेयर स्ट्रेस है उस केस में मैटर नहीं करता. यू अंडरस्टैंड? नाउ वी विल ड्रा द मोर सर्कल. यू अंडरस्टैंड दैट? तो मोर सर्कल अगर आप ड्रा करते हैं, सपोज दिस इज योर मोर सर्कल, राइट? तो जैसे बताया ये पॉइंट आपका क्या है, सेंटर है. तो सेंटर के कोऑर्डिनेट बता दिए मैंने आपको क्या होते हैं. सपोज वी हैव टेकन 2 पॉइंट्स हियर. दिस पॉइंट इज ए यहाँ पे एंड यहाँ पे पॉइंट बी, राइट? सो वी हैव टेकन 2 पॉइंट्स हियर ए एंड बी. J way, this is angle theta. This is angle theta. Point A is here, and J भी आपका एंगल थीटा होगा, राइट? तो J आपका जो एंगल होगा, दिस इज योर एंगल थीटा, राइट? जे अगर थीटा तो ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा. सो दिस इज योर फिगर नंबर 1. फिगर नंबर 1, राइट? एंड दिस इज योर फिगर नंबर 2. दिस मोर सर्कल, दैट इज योर फिगर नंबर 2. सपोज आई विल टेक 1 पॉइंट हियर. A point is here, and point B is here. You understand? So this is your Mohr circle. बाकी वही वो सेंटर उसका क्या होगा, सेंटर वही आपका सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई 2 0, और जो आपका रेडियस है, रेडियस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2. रेडियस दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर. Understand? So first let us see this first figure. Figure first.
दिस इज योर फिगर सेकंड। अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ द मोर सर्कल। मोर सर्कल का सिग्निफिकेंस क्या होगा? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सो ये जो पॉइंट है, देखिए द पॉइंट्स, फर्स्ट वी विल डिस्कस द मोर सर्कल हियर। द पॉइंट ए which I have taken here, point B, this I have taken on the circumference of the Mohr circle. Point A I have taken on the circumference of the Mohr circle. These 2 points A or B which I have taken on the circumference of the Mohr circle, remember that these are 2 planes, that is plane A and plane B. You understand? These are 2 planes A and B. इसमें जो कोऑर्डिनेट इसके होंगे A के क्या होंगे? सिग्मा A, टाउ A, and the coordinates of the point B are sigma B and tau B. Coordinates of the point is sigma B and tau B. You understand this? तो सिग्मा ए एंड दीज आर द नॉर्मल एंड shear stresses एट एन एंगल थीटा। तो ये क्या है? इधर लिख लेते हैं थोड़ा। सिग्मा ए टाउ ए नॉर्मल एंड shear stresses at an angle theta at point A. At point A. So you can say that the coordinates of the point A, पहले point A, जहां पर जो point A है, that will represent the plane. पहली चीज तो ये है, the point on the circumference of the Mohr circle that represents the plane. So here you will, जहां पे if you will see this figure number 1, here you will see that here we are only having 2 planes, that is vertical plane and horizontal plane, right? And in this, जहां से हम only we can find the state of stress on the 2 planes only, that is for horizontal and vertical plane only. But in this case, in the Mohr circle, if you will see the Mohr circle here, so different points on the Mohr circle, they represents the different plane. जैसे J point है, J point, 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 J point. So different points on the Mohr circles, they represent the different plane, and B can calculate the any stress. We can calculate any state of stress on these planes. हम इन planes के ऊपर, different planes के ऊपर हम state of stress को क्या है find out कर सकते हैं। जहां पे सिर्फ 2 planes के ऊपर find out कर सकते हैं, vertical and horizontal plane. But if I will just, so what is the significance of this? You can say Mohr circle. That the significance of the Mohr circle is that the points which are on the Mohr circle, they represent the plane. तो ये इसी तरीके से इसका था सिग्मा बी टाउ वी are the shear stress and पहले नॉर्मल लिखो, नॉर्मल स्ट्रेस and shear stress at point B, right? ये सेकंड हो गया इसका। थर्ड क्या हो गया? तो कहने का मतलब ये है, what is the meaning of this? That the coordinates of the point, sorry, so sigma A and tau A, what is this? ये सिग्मा ए एंड टाउ ए क्या था? These are the coordinates of the points. Coordinates
of the point. Coordinates of the point क्या है? They represent the normal stress and shear stress, right? Coordinates of the point A will give the normal stress and shear stress at point A. ये समझ आ गया? तो ये जो coordinates of the point थे, ये था coordinates of the point A, sigma I and this, they represent the plane. And coordinates of the point B that also give the normal stress and shear stress at the point B. So it means that हम कह सकते हैं कि any point on the circumference of the Mohr circle, this is very important point to understand. जहां पे लिख लें आप तीसरा point. Any point on the circumference of the Mohr circle, any point on the circumference of Mohr circle represents the plane. तो कोई भी पॉइंट हम अगर मोर सर्कल के ऊपर ले लें, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट द प्लेन. Any point on the circumference of the Mohr circle that represents the plane means the value of the so understand that. जहां तक चीजें क्लियर हैं, क्या है व्हाट आई हैव टोल्ड यू हियर, ये जो मोर सर्कल है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मोर सर्कल हियर, दैट ऑन द मोर सर्कल if we will take any point on the circumference of the Mohr circle, that will represent the plane. You understand? So we can calculate the state of stress on any point on the Mohr circle. ठीक है ना? स्टेट ऑफ स्ट्रेस हम किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट की हमें किसी भी प्लेन के ऊपर अगर हमें स्टेट ऑफ स्ट्रेस वी हैव टू फाइंड आउट, बिकॉज एज यू नो दैट वी आर हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन्स, not only horizontal and vertical plane. You can say that we are inclined plane, just like this plane. So there are different infinite number of planes which are passing through a point. We have got different number of planes that are passing through a point, infinite number of planes. But in this figure number 1, you only see two planes, that is the horizontal plane and the vertical plane. अब हमें significance क्या है इसका, importance क्या है कि मोर सर्कल को क्यों हमने कहा कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर टू अंडरस्टैंड कि मोर सर्कल से हमें जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है उसमें आपको हर चीज दैट यू कम टू नो कि कहां पे स्ट्रेस आपकी मैक्सिमम है, कहां पे शेयर स्ट्रेस आपकी मिनिमम है, कहां पे शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है, कहां पे आपका सिग्मा मैक्सिमम आएगा, कहां पे आपका सिग्मा मिनिमम आएगा, और डिफरेंट प्लेन के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर आपकी स्टेट ऑफ स्ट्रेस सिग्मा क्या की वैल्यू क्या है और टाउ की क्या वैल्यू है, और अगर इस पॉइंट को ले जहां पर क्या है, इस तरीके से क्या है, जहां पे क्या है, जहां पे क्या है, जहां पे आपका, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, बट जहां पे जब देखिए ये दो पॉइंट्स हैं मोर सर्कल के ऊपर, जहां से हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस का भी डेफिनेशन जहां से मिल सकता है मिलेगा. प्रिंसिपल स्ट्रेस में क्या होता है कि आपका जो शेयर स्ट्रेस होगा वो क्या होता है, जीरो होता है. एंड इफ वी विल कंसिडर दीज टू पॉइंट्स, जहां पे देखिए जहां पे सिर्फ आपका सिग्मा होगा बट शेयर स्ट्रेस इज जीरो. सो ये जो प्लेन है, दीज टू प्लेन्स आर कॉल्ड द प्रिंसिपल प्लेन्स. ये जो प्लेन क्या है, प्रिंसिपल प्लेन्स हैं जहां पे आपका शेयर स्ट्रेस इज जीरो, एंड so these planes and the sigma is maximum and minimum, right? तो shear stress जीरो है. So यहां से आप देखिएगा, if we will take the different points on the circumference of the Mohr circle and we can calculate the stress at any point, at any plane, infinite number of planes which are passing through the point, and that we can only do
इफ वी नो द कंसेप्ट ऑफ द मोर सर्कल, यू अंडरस्टैंड दैट। अगर हमें मोर सर्कल का कंसेप्ट क्लियर है तो जहां से ये चीजें हम पता कर सकते हैं, राइट। अब देखिए इसका ये तो जहां सारी चीजें यहां पे क्लियर हो गई, सो आई थिंक इसको मिटा देते हैं, राइट। इसमें कुछ कंक्लूजन्स देखें हम क्या लिखेंगे, राइट। तो कंक्लूजन क्या है, नोट कर लीजिए। इफ वी हैव टू ड्रॉ द फर्स्ट, इफ वी हैव टू ड्रॉ द मोर सर्कल for any state of stress at any point, if we have to draw the Mohr circle at any plane, अगर हमें ड्रा करना है, राइट, तो फर्स्ट हमारा क्या स्टेप होगा, ये है कि हमें ड्रा करना है। किस तरीके से ड्रा करेंगे हम, तो फर्स्ट हमारा जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप आप कह सकते हैं, फर्स्ट स्टेप है लोकेट द प्लेन्स। पहले आप क्या करें, पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप is locate the plane. First है locate the plane. अब plane क्या है, on the Mohr circle as I told you, plane क्या है, the point on the circumference, the point on the circumference of Mohr circle is the plane. पॉइंट जो होगा मोर सर्कल का वो क्या है, प्लेन है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो मोर सर्कल है उसके ऊपर आप पॉइंट ले लें तो वो क्या होगा, आपका प्लेन होगा। राइट, तो ये आपका, ये जो पॉइंट है ये आपका प्लेन होगा, ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका प्लेन है, ये आपका सेंटर है। राइट, तो जो हम पॉइंट लेंगे सर्कमफ्रेंस, सपोज करो हमें इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या निकालना है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस वी हैव टू फाइंड आउट। तो फर्स्ट वी विल लोकेट द प्लेन ऑन द, लोकेट द प्लेन, और प्लेन को कैसे लोकेट करना है, वी विल टेक द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द मोर सर्कल। आप देखिए सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप क्या होगा, पॉइंट हमने ले लिया, पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लेन को। तो सेकंड स्टेप क्या है कि हमें इसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। जो हमने पॉइंट लिया, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। ये आपका आ गया टाउ ए, ये आपका अगर ओरिजिन है 0 0, राइट, और ये आपका सिग्मा ए।
0 से लेके सिग्मा है। यू अंडरस्टैंड? तो हमने लोकेट कर लिए पॉइंट। तो सेकंड स्टेप है कोऑर्डिनेट्स जो है वी नीड टू फाइंड द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। तो हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड, तो जहां से देखिए ये आपका जे कोऑर्डिनेट वाई आ गया, जे कोऑर्डिनेट आपका एक्स आ गया, एक्स एंड वाई। वी नीड टू फाइंड एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। जिस पॉइंट के ऊपर हमें स्टेट ऑफ स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, पहले तो आप उस पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करो, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ये कितने एंगल के ऊपर है, किस तरीके से है, तो यू हैव टू ट्राई इट। तो सेकंड, पहले हमने प्लेन को लोकेट किया, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, और ये जो आपके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो हम एक्स, और ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए का, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट दैट रिप्रेजेंट्स, सो यू कैन से एक्स वाई quadrant represents sigma and tau, normal stress and shear stress. You understand? तो जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या रिप्रेजेंट विल गिव द सिग्मा एंड टाउ ऑफ दैट पॉइंट, राइट? सिग्मा एंड टाउ एट दैट पॉइंट, कि नॉर्मल स्ट्रेस कितनी है उस पॉइंट के ऊपर और शेयर स्ट्रेस कितना है। दिस पॉइंट इज क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर? हाउ वी विल ड्रा द मोर सर्कल। अगर हमें मोर सर्कल ड्रा करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट वी हैव टू लोकेट द प्लेन। और प्लेन को कैसे लोकेट करते हैं मोर सर्कल के ऊपर? बिकॉज एज आई टोल्ड यू द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द मोर सर्कल दैट रिप्रेजेंट द प्लेन। यू अंडरस्टैंड? सो इफ यू वांट टू फाइंड the state of stress at any point which is given to you, कि आपने इस पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर आपने स्टेट ऑफ स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करें, मोर सर्कल ड्रा करेंगे, और मोर सर्कल के ऊपर आप पॉइंट जो कंसिडर करेंगे वो पॉइंट क्या होगा, आपका प्लेन होगा। कहां पे करेंगे? सर्कमफ्रेंस ऑफ मोर सर्कल। दिस थिंग इज क्लियर? सेकंड स्टेप क्या है? पॉइंट तो हमने ले लिया, वो नाउ वी नीड टू फाइंड द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट के फाइंड आउट करने हैं। तो जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, जैसे आपको मैंने बताया, इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। जो भी पॉइंट होगा, जैसे इसका एक्स कोऑर्डिनेट यह है, दिस इज योर वाई कोऑर्डिनेट, जहां पे आएगा टाउ इस पॉइंट के ऊपर, और ये जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है ये आएगा जहां पे, तो जहां से लेके जहां तक सिग्मा एक्स आएगा, और जहां से लेके जहां तक, जहां से लेके जहां तक सिग्मा बी आएगा, और जहां से लेके जहां तक टाउ बी आएगा। यू अंडरस्टैंड? तो इसी तरीके से जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं दैट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ द सिग्मा एंड टाउ ऑफ दैट पॉइंट, राइट? जहां तक चीजें क्लियर हैं। सो यू कैन से दैट एज पर द, जहां पे मैंने सिर्फ एक पॉइंट लिया, इसी तरीके से पॉइंट बी के ऊपर अपना फाइंड आउट करना, तो सेम प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो। पॉइंट बी, इसी तरीके से पॉइंट सी के ऊपर है, ये पॉइंट सी है, ये डी है, इस तरीके से। सो डिफरेंट पॉइंट ऑन द मोर सर्कल्स वी कैन फाइंड द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द सिग्मा एंड टाउ एट दैट प्लेन। पॉइंट क्या है? प्लेन है, तो हम सिग्मा और टाउ की वैल्यू हम उस प्लेन के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द मोर सर्कल। यू अंडरस्टैंड? वन थिंग इज क्लियर हियर। अब देखिए, जहां से ये डायग्राम देखिए, जहां पे एंगल थीटा और जहां पे एंगल मैंने 2 थीटा लिखा, तो इसको भी आप देख लीजिए कि हाउ इट हैज कम हियर। इसको बिठा दीजिए। अगर आप इक्वेशन ऑफ द मोर सर्कल जो मैंने ड्राइव किया था, इफ वी विल सी द इक्वेशन ऑफ द मोर सर्कल, you will find that in the equation of the Mohr circle the angle is 2 theta। जैसे यहाँ पर sin 2 theta लिखा था, cos 2 theta था, theta नहीं था। So we can say that if
टू प्लेन्स आर मेकिंग एन एंगल थीटा, अगर जहां पे देखिए जहां पे अगर एंगल थीटा, दो प्लेन्स आपस में एंगल थीटा बना रहे हैं, तो मोर सर्कल में जो एंगल होगा वो क्या होगा, टू थीटा होगा, दैट इज द डबल। मोर सर्कल में जो हमारा एंगल होगा वो क्या होगा, टू थीटा, दैट इज द डबल एंगल। यू अंडरस्टैंड? इट मीन्स दैट द एंगल बिटवीन ए एंड बी एट द फिगर तो जहां पे देखिए कि एंगल, अगर फिगर 1 करूं, एंगल ए बिटवीन लिख लीजिए, बिटवीन एंगल ए एंड बी, राइट? एंगल बिटवीन, सॉरी बिटवीन, ये लिखना था ऐसे, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये जो ए एंड बी टू प्लेन्स मैंने लिए यहां पे फिगर 1, तो ये क्या था, एंगल बिटवीन ए एंड बी, दैट इज थीटा, राइट? और मोर सर्कल की जो इक्वेशन है उसमें आपने देखा कि एंगल क्या है, वहां पे थीटा नहीं है, इंस्टेड ऑफ थीटा देयर इज एंगल टू थीटा। तो आप कह सकते हैं इन मोर सर्कल, दिस इज इन फिगर 1, ये जो फिगर 1 थी जिसमें आपके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन थे, तो दो प्लेन के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। बट इन मोर सर्कल, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, इन मोर सर्कल एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, तो चलो ये एंगल ए और बी को ले रहे हैं तो यहां पे यही लिखेंगे, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी क्या है, ए एंड बी आर द टू प्लेन्स इज इक्वल टू टू थीटा, बिकॉज इन द इक्वेशन ऑफ द मोर सर्कल द एंगल इज टू थीटा। तो जहां पे हम मोर सर्कल जब हम ड्रा करेंगे तो उसमें एंगल जो हमारा होगा वो क्या होगा, डबल होगा। जैसे देखिए जी आपका वर्टिकल, ये क्या है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये जहां पे क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में एंगल कितना है, जहां पे 90 डिग्री। यू अंडरस्टैंड? और जब हम मोर सर्कल में हम वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन को कैलकुलेट करेंगे या फाइंड करेंगे, तो उसके बीच का जो एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री नहीं होगा, बल्कि 2 into 90 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री होगा। वहां पे दैट वी विल टेक द ट्वाइस ऑफ द एंगल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, और ये आपको याद रखिएगा कि मोर सर्कल के बीच में जो आपका एंगल है वो क्या है, डबल होगा, जो आपका एंगल सिंपल फिगर में आपका होगा। यू अंडरस्टैंड? तो मोर सर्कल से जो हमने ड्रा किया, तो मोर सर्कल से देखिए कंक्लूजन क्या आया, एंड में कंक्लूजन क्या आया, मोर सर्कल्स ओवरऑल गिव द पिक्चर ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस। मोर सर्कल से हमें क्या मिला कि एक्चुअल पिक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या है। जहां पे देखिए कहां पे आपका सिग्मा मैक्सिमम होगा, ये जो मोर सर्कल है जहां पे आपका सिग्मा मैक्सिमम होगा, कहां पे आपका सिग्मा मिनिमम होगा, जहां पे आपका सिग्मा मिनिमम होगा। यू अंडरस्टैंड? कहां पे टाउ मैक्सिमम होगा, तो आपको पता ही है टाउ मैक्सिमम इस पॉइंट के ऊपर होगा, राइट? टाउ जीरो कहां पे होगा, टाउ जीरो इस पॉइंट के ऊपर होगा। यू अंडरस्टैंड दैट? टाउ मैक्सिमम जहां पे होगा, और टाउ मिनिमम कहां पे होगा, सेंटर में होगा, मींस जीरो जहां पे होगा। तो जहां पे आपको मैक्सिमम, वेयर वी विल गेट द मैक्सिमम सिग्मा, वेयर विल वी गेट द मिनिमम सिग्मा, वेयर विल वी गेट द मैक्सिमम shear stress, where we will get the minimum shear stress, all these things we can get from this only one figure जो हमने ड्रा किया है मोर सर्कल का, जहां से हम सारी चीजें हमें we can calculate।
we can find out. Or moreover, if we know how to draw the Mohr circle से हमें आप जितने भी इन्फिनाइट प्लेन ले लें, जितने भी पॉइंट्स ले लें, प्लेन हमें होंगे, हम हर प्लेन के ऊपर स्टेट ऑफ स्ट्रेस वी कैन कैलकुलेट. वी कैन कैलकुलेट द स्टेट ऑफ स्ट्रेस हियर. अगर ये है, ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस हमने कहा है कि इस पॉइंट के ऊपर, ये दिस इज अ प्लेन, तो जहां भी हमें स्टेट ऑफ स्ट्रेस फाइंड आउट करना है तो वी कैन लोकेट द पॉइंट ऑन द मोर सर्कल के प्लेन कहां पे है, जहां पे होगा. तो जहां से हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेंगे ऑन द एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस. और जो एक्स एक्सिस बाई एक्सिस कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, आपके सिग्मा एंड टाउ होंगे. तो जहां से हमें मिल जाएगा कि जहां पे इस पॉइंट के ऊपर सिग्मा की, टाउ की क्या वैल्यू है और इस पॉइंट के ऊपर सिग्मा की क्या वैल्यू है. यू अंडरस्टैंड. तो इस तरीके से ये आपका था सारा कंक्लूजन इसका मोर सर्कल का. और मोर सर्कल से आप देखिए वन थिंग यू विल सी हियर, क्योंकि हम मोस्टली जो प्रॉब्लम्स हैं, वेरी फ्यू प्रॉब्लम्स वी सॉल्व बाय द मेथड ऑफ द मोर सर्कल. रीजन इज के we have to find the graph papers, we have to take the graph papers and other things, foot rules and compass and all these things which are not allowed nowadays in the examinations, right? So mostly all the problems we deal with the analytical method. हम मोस्टली जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम डील करते हैं कैसे, एनालिटिकल मेथड से. बट एनालिटिकल मेथड इज वेरी इजी टू फाइंड आउट व्हाट, वहां पे कैलकुलेशन होगा. एनालिटिकल मेथड में जैसे आपको पता है कि सेंटर का फार्मूला आपके पास है. सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ द मोर सर्कल दैट इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई बाई 2. ये आपको सेंटर ऑफ द मोर सर्कल इंटू 0, वहां से सेंटर निकल जाएगा मोर सर्कल का, और दूसरा रेडियस मिल जाएगा. तो दैट यू कैन ड्रा द मोर सर्कल by the analytical method by calculating that. Now अब जहां तक तो चीजें क्लियर हो गई कि मोर सर्कल क्या है, मोर सर्कल का सिग्निफिकेंस क्या है, फंक्शन क्या है, इसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम इससे हम किस तरीके से, हाउ वी विल कैलकुलेट द सिग्मा मैक्सिमम, हाउ वी विल कैलकुलेट द सिग्मा मिनिमम, टाउ मैक्सिमम, टाउ मिनिमम एंड ऑल द स्ट्रेसेस in order to know the state of stresses of all different type of the points on the different type of the planes, we can calculate by the method of the Mohr circle. Now the point is that how we will draw the Mohr circle. अब Mohr circle को हम किस तरीके से ड्रा करते हैं, that we will understand now. So जहां तक चीजें आपको क्लियर हैं, आप देखिए हाउ टू ड्रा द मोर सर्कल. अब देखिए मोर सर्कल तो जैसे मैंने आपको बता दिया, अब इसको ड्रा कैसे करते हैं, दिस वी विल लर्न. ध्यान से इसको ध्यान से सुनिएगा. सो हाउ टू ड्रा the how to draw the Mohr circle. So to draw the Mohr circle we have two different approach, and if we have to draw the Mohr circle तो हमारे पास दो different approach हैं. फर्स्ट अप्रोच तो आपकी होगी एनालिटिकल मेथड, जो बेसिक ज्योमेट्री के ऊपर है. एनालिटिकल मेथड मींस बेसिक ज्योमेट्री. मींस क्योंकि आपको सेंटर दिया होगा, सेंटर आपको पता ही है, इसके क्या है, ये सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई बाई 2 0. तो सेंटर आप निकाल सकते हैं इफ यू आर हैविंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स एंड सिग्मा बाई. एंड रेडियस आल्सो आप यू नो, रेडियस आर क्या है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स बाई, राइट. सो जब आपको सिग्मा एक्स सिग्मा बाई दिया है तो आप सेंटर भी निकाल लेंगे, आप रेडियस भी निकाल लेंगे, टाउ एक्स बाई भी दिया है.
तो जहां से आपको सेंटर और रेडियस मिल जाएगा तो यू कैन ड्रा द सर्कल, यू कैन ड्रा द मोर सर्कल। यू अंडरस्टैंड? ये हो गया आपका एनालिटिकल मेथड। दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड अप्रोच जो हमारी है, हम हाउ वी विल ड्रा द सर्कल, सर्कल को हम कैसे ड्रा करते। सपोज इफ वी आर हैविंग द 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सपोज एक जे पॉइंट ले लेता हूं मैं, एक जे पॉइंट ले लेता हूं, जे पॉइंट। इफ वी आर हैविंग द 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जे पॉइंट, तो वी कैन ड्रा द मोर सर्कल। हम सर्कल को, कोई भी सर्कल को ड्रा कर सकते हैं इफ वी आर हैविंग द 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अब 3 पॉइंट्स मीन्स 3 प्लेन्स। सपोज ये 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट क्या हैं जी आपके 3 प्लेन्स हैं, राइट। सो 3 पॉइंट्स मीन्स 3 प्लेन्स। तो हम किसी भी प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा एंड टाउ ओनली, राइट। So you can say that in order to find the location of the points on Mohr circle. Point means location of point on the Mohr circle or plane or the Mohr circle, but we need हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा, we need the value of सिग्मा एंड टाउ, हमें सिग्मा एंड टाउ की वैल्यू चाहिए, राइट। एंड सिग्मा एंड टाउ, दीज टू stresses you can say they are acting only on the 2 planes, that is the vertical plane and horizontal plane, right। तो हमारी 2 प्लेन्स के ऊपर तो ये वैल्यू होगी सिग्मा एंड टाउ की, बट वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ सिग्मा एंड टाउ ऑन 3 प्लेन्स। जो हमारा सिग्मा एंड टाउ है वो क्या है, 2 प्लेन्स के ऊपर होता है, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, 2 प्लेन के ऊपर है। तो अगर इफ वी हैव टेकन द 3 पॉइंट्स, 3 प्लेन ऑन दिस, तो वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ सिग्मा एंड टाउ। तो इसलिए क्या होगा कि हम ये मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते टू ड्रा द मोर सर्कल। यू अंडरस्टैंड दिस? So we don't have sigma and tau values on 3 planes, so but we have the value sigma and tau on the 2 planes only, जैसे मैंने आपको बताया। तो सिग्मा एंड टाउ की वैल्यू जो है, दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू ऑफ सिग्मा एंड टाउ ऑन ओनली ऑन 2 प्लेन्स, ये तो 2 प्लेन के ऊपर ही मिलेगी, ओनली ऑन 2 प्लेन्स। सो 3 प्लेन्स के ऊपर तो ये वैल्यू नहीं होती सिग्मा एंड टाउ। सो इट मीन्स दैट हम 3 पॉइंट्स लेके हम सर्कल ड्रा नहीं कर सकते। यू अंडरस्टैंड दैट? तो ये मेथड भी आपका क्रॉस हो गया, वी कैनॉट ड्रा द मोर सर्कल। नाउ द अनदर मेथड विच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड, जिससे हम मोर सर्कल को ड्रा करते हैं, वो क्या है कि वी हैव टू लोकेट द डायमीटर ऑफ द सर्कल, मीन्स वी हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो तीसरा मेथड जो हम मोर सर्कल, और जो कि मोस्टली कॉमन मेथड है, टू फाइंड द डाया ऑफ मोर सर्कल। तो मोर सर्कल का, या कोई भी सर्कल है उसका अगर हमें सर्कल ड्रा करना है, तो अगर हमें डाया की वैल्यू मिल जाएगी, डाया कितना, तो वी कैन ड्रा द मोर सर्कल।
अब देखिए जो एंड पॉइंट्स होंगे दो प्लेन के, राइट, द एंड पॉइंट्स ऑफ द टू प्लेन दैट रिप्रेजेंट्स द डाया ऑफ द मोर सर्कल, यू अंडरस्टैंड दैट? तो डायमीटर ड्रा करने के लिए, जैसे ये डायमीटर है, तो डायमीटर ड्रा करने के लिए बी नीड, हमें क्या चाहिए? एंड पॉइंट्स चाहिए फॉर डायमीटर। हमें क्या चाहिए? बी नीड टू एंड पॉइंट्स, टू एंड्स पॉइंट। ये दोनों एंड जो हैं इनके हमें पॉइंट्स चाहिए। और टू एंड पॉइंट्स क्या है? मीन्स दे आर टू एंड पॉइंट्स मीन्स से दैट इज these are टू प्लेन्स। ये जो दो प्लेन होंगे तो वो आपके क्या होंगे? डायमीटर के क्या होंगे? एंड पॉइंट होंगे। सो एंगल ये तो हो गया एक चीज। दूसरा इसमें ये आपका डायमीटर ड्रा हो जाएगा। अब देखिए एंगल जो मैंने आपको बताया था, एंगल between these two end points। अब मुझे बताइए एंगल इसके बीच में कितना होना चाहिए? जैसे आपको पता है, ये मैंने फिगर ड्रा किया था, ये वाला, these are the two planes, horizontal plane and the vertical plane, right? तो ये एक स्ट्रेस थी सिग्मा एक्स टाउ एक्स बाई, राइट। तो दीज आर, अब इस फिगर के ऊपर आ जाइए, जस्ट अंडरस्टैंड। ये जो आपकी फिगर है, ये जो हमारा, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये आपका क्या हो गया? वर्टिकल प्लेन। ये आपका वर्टिकल प्लेन और ये इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है। तो हमें इसका डायमीटर ड्रा करने के लिए मोर सर्कल का क्या करते हैं कि वी लोकेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द वर्टिकल प्लेन। ये जब हम इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे, आपको ड्रा करके बताएंगे, तो देन यू कम टू नो। लेकिन जहां पे देखिए, जहां पे द एंगल बिटवीन द टू प्लेन दैट इज 90 डिग्री, तो इसके लिए जो डायमीटर का एंड पॉइंट होगा, कि बिकॉज दिस इज प्लेन नंबर 1, ये क्या है? ये पॉइंट प्लेन नंबर 1 है और ये आपका पॉइंट है प्लेन नंबर 2। और मैंने कहा कि आपको डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू लोकेट the ends of the diameter. Two ends of the diameter means two plane and they should be apart or they should make an angle। अगर जहां पे दो प्लेन आपस में एंगल 90 डिग्री बना रहे हैं, जहां से देखिए आप हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, तो जहां पे जो आपका एंगल होगा, ये वाला एंगल, दिस इज 180 डिग्री डबल होगा, बिकॉज एंगल ऑफ द मोर सर्कल, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर इसका एंगल थीटा है तो मोर सर्कल का जो एंगल होगा, मोर सर्कल का जो एंगल होगा वो क्या होगा? 2 थीटा है। अगर जहां पे एंगल थीटा है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, तो मोर सर्कल क्या करता है? डबल एंगल होगा। और अगर जहां पे प्लेन जो हम ये ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन, इफ these are having the angle 90 degree between them, so it means that the angle between the two plane which we have taken for calculating the diameter, you can say these are the end points of the diameter and angle that should be 180 degree। ये याद रखिएगा। मोर सर्कल को जब हम ड्रा करेंगे उसमें हम जो डायमीटर एंगल लेंगे वो 180 लेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका
हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। यू अंडरस्टैंड। एंड टू ड्रा द मोर सर्कल वी हैव टू लोकेट द हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट। एक प्लेन अगर हमारा हॉरिजॉन्टल है तो उसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सिग्मा एंड टाउ की वैल्यू क्या है, उसकी कोऑर्डिनेट क्या है, सिग्मा एंड टाउ। इसी तरीके से हमारा जो वर्टिकल प्लेन है उसके कोऑर्डिनेट ड्रा करने पड़ेंगे और उसके बाद हमें मोर सर्कल के ऊपर उसको ड्रा करना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड दिस। तो पहले हम उनकी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सपोज ये आपका जहां पे आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन आता है, ये आपका जहां पे वर्टिकल प्लेन आता है, तो अगर इसको मिलाएंगे तो इनके बीच में एंगल आपका 180, कहीं भी आप ले लें, कहीं भी डायामीटर आपका ले लें, कहीं भी डायामीटर लेंगे। ये सपोज करो वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो डायामीटर हमेशा जो है आपका कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बिकॉज here the angle between the two plane is 90 degree, so the angle of the diameter that is 180 degree। जहां तक चीजें आपको क्लियर हैं। so things are clear here। अब देखिए जहां तक तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी। दिस इज द थर्ड मेथड टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द मोर सर्कल, एंड दिस इज ओनली द मेथड, और यू कैन से दिस इज द मेथड विच इज कॉमनली यूज्ड फॉर ड्राइंग द मोर सर्कल। जो पीछे बताया था एनालिटिकल मेथड, जहां से हम क्या करते हैं, मोर सर्कल को फाइंड आउट करते हैं बाय कैलकुलेशन, एनालिटिकल बेसिक ज्योमेट्री से, और हम क्वेश्चंस सॉल्व हम मोस्टली एनालिटिकल मेथड से करेंगे। लेकिन जो मोर सर्कल का आपको ये मैंने मेथड आपको बताया कि टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द डायमीटर टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, पहले हम डायमीटर किसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। और डायमीटर क्या है, डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं वो आपके दो प्लेन्स के पॉइंट हैं, और दीज प्लेन दे शुड अपार्ट टू ईच अदर एट 180 डिग्री। बस ये आपको चीजें याद रखनी है। जब हम इसके मोर सर्कल हम ड्रा करेंगे, 2 4 10 क्वेश्चन करेंगे इसके, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको ये चीज बताया था कि व्हेन वी विल टेक द कोऑर्डिनेट्स, एक्सिस जब हम लेके जो हम मोर सर्कल हम ड्रा करते हैं, हम सिग्मा एंड टाउ एक्सिस के ऊपर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा सिग्मा एक्सिस है, ये टाउ एक्सिस है। जो इस साइड का होगा जो हम लिखते हैं प्लस सिग्मा, यू अंडरस्टैंड। इस साइड का जो होगा दिस इज होगा माइनस सिग्मा। जे जो पॉइंट है ये आपका ओरिजिन है, मीन्स 0 एंड 0। जे जो है जहां पे मैं माइनस टाउ लूंगा, और जहां पे ये जो पॉइंट है प्लस टाउ लूंगा। अब देखिए मोस्टली आपने जितने भी पढ़ा है, जितना भी आगे पीछे शेयर स्ट्रेस के बारे में पता है, जो शेयर स्ट्रेस हमारी अपवर्ड पोजीशन में होती है, कोई भी चीज़ आपकी अपवर्ड पोजीशन में होती है उसको हम लेते हैं पॉजिटिव साइन, और जो डाउनवर्ड है वो हम लेते हैं नेगेटिव साइन। तो जहाँ पे मैंने, आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव भी रख सकते हैं, देयर इज़ नो नीड कि आप इसको नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें। अब लेने का जहाँ पे ये रीज़न था कि हम सिग्मा थीटा की वैल्यू, सिग्मा थीटा, और जहां से हम क्या है स्टेट ऑफ स्ट्रेस तो निकाल रहे हैं, राइट। तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस की वैल्यू अगर हम एनालिटिकल मेथड से निकालेंगे, और इस मेथड से निकालेंगे जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड खासकर शेयर स्ट्रेस की बात करूंगा, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस तो दोनों केसेस में निकालेंगे तो उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ आर सेम होगा, कोई चेंज नहीं। बट व्हेन वी कैलकुलेट shear stress by analytical method and by Mohr circle, the magnitude is same, but you will find that direction वहां पे पॉजिटिव आ रहा है, जहां पे नेगेटिव आ रहा है, यू अंडरस्टैंड। बट एज आई टोल्ड यू, डायरेक्शन का प्लस और माइनस साइन का कोई अफेक्ट नहीं है, कोई उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। वी डोंट कंसिडर द साइन हियर शेयर स्ट्रेस के केस में। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगर हम इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स लेते हैं कि आपका ये जो आपका सिग्मा कोऑर्डिनेट है, अपवर्ड डायरेक्शन में मैं माइनस लिया एंड दिस डायरेक्शन में मैंने प्लस लिया,
तो उसमें ये जो आपका थोड़ा बहुत ये कंफ्यूजन आएगा माइनस और प्लस साइन का, वो भी आपका दूर हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? तो ये लिटिल बिट एडजस्टमेंट आई हैव डन हियर, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। यू कैन टेक प्लस टाउ हियर एंड माइनस टाउ हियर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज शेयर स्ट्रेस के केस में हम साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वी डोंट कंसिडर द साइन। तो ये आज का जो लेक्चर था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। और इस लेक्चर को जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि अगर आप स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और इसका पूरा कंसेप्ट प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि मोर सर्कल क्या है, इसको हम किस तरीके से ड्रा कर सकते हैं, तो ये लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर हम आगे जो प्रॉब्लम्स करेंगे, मोर सर्कल कैसे ड्रा करते हैं, तो ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। क्योंकि आप देखिए, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। अगर इसी लेक्चर को आप कंप्लीट लेक्चर को देखें, पढ़ें, नोट करें, तो डिफरेंट आप पॉइंट्स इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जो कि इसके कंसेप्ट हैं। तो उन कंसेप्ट के ऊपर तो एक डिफरेंट लेक्चर 15 मिनट आधा घंटे का बन सकता है। तो अगर वो चाहिए होगा तो वो भी देखेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग लेक्चर है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने ड्रॉबैक देखा, जहाँ तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं जो एक पूरा, तो वो अगर स्टार्टिंग से एंड तक लेक्चर देखेंगे तो मेरे लेक्चर्स में आपको कंप्लीट कंसेप्ट टॉपिक आपको सारा मिलेगा। वहाँ पे जो PYQs है, जो भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जाम में, वो सारी चीज़ें उसमें एक एक करके मैंने क्लियर किया है। बट अनफॉर्चुनेटली द पीपल डोंट गो फॉर होल ऑफ द लेक्चर। दिस इज द प्रॉब्लम विच आई एम फेसिंग हियर। कंसेप्ट तो बहुत अच्छे दे रहा हूँ मैं, मैक्सिमम चीज़ें दे रहा हूँ। आई डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग, जो भी है मेरे पास नॉलेज, आई एम जस्ट डिलीवरिंग। बट जब आप लेक्चर पूरा देखेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कंसेप्ट क्या है, क्या पढ़ाया गया है, क्या दिया है। तो ये मेरा है कि अगर आपने मोर सर्कल को अंडरस्टैंड करना है, प्रॉपरली पढ़ना है, तो थोड़ा थोड़ा करके ही लेक्चर को देखिए, लेकिन इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट देखिए, और जहां से आपको मोर सर्कल का कंप्लीट कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? तो आज तो यही पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर है, दिस इज आल्सो दिस विल आल्सो भी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। वो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें हम मोर सर्कल ड्रा करेंगे। डिफरेंट हमें वैल्यूज दी होंगी, तो हमें मोर सर्कल कैसे ड्रा करना है, राइट, और उसमें हमने सिग्मा और टाउ की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो वो आपको प्रैक्टिस सेशन होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे आप, सो दैट कि आपको उन क्वेश्चंस के बारे में पता चले कि किस तरीके से मोर सर्कल हम बनाते हैं, राइट। तो आज का लेक्चर इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।